السلام علیکم خواتین و حضرات، بڑی عید کی بڑی خوشیوں کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالباسط اردو پوائنٹ پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو اردو پوائنٹ کی طرف سے آپ کے چاہنے والوں کو بہت بہت عید مبارک۔ یقیناً آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ عید سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے۔ قربانی کی عید ہے۔ اس موقع پر ایک بات میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ قربانی کی عید میں اپنی خوشیوں میں ان لوگوں کو ضرور شامل کریں جن کے پاس خوشیاں حاصل کرنے کے وسائل نہیں ہیں، اور خاص کر یہ عید تو ہے ہی اس بات کا درس دیتی ہے، ہمیں قربانی کا درس دیتی ہے۔ اور آج اس موقع پر، عید کے موقع پر، ہم آپ کی صحت کا خیال رکھے ہوئے ہیں۔ ہم صحت کی باتیں پروگرام میں آج ڈسکس کریں گے کہ مختلف بیماریوں میں مبتلا مریض قربانی کے گوشت سے کس طرح لطف اندوز ہو سکتے ہیں، کیسے وہ اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میو ہاسپٹل لاہور سے ایسوسیٹ پروفیسر آف میڈیسن ڈاکٹر سومیہ اقتدار۔ السلام علیکم میڈم، تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے تو عید مبارک۔ آپ کو بھی بہت 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 شکریہ۔ آپ کی عید کیسے گزر رہی ہے؟ کیسا، ڈیوٹی پہ تو نہیں ہے آج آپ؟ نہیں، آج تو ڈیوٹی پہ نہیں ہوں، لیکن آبویسلی پیشنٹس ہمارے ہاسپٹل میں کیونکہ ایڈمیٹڈ ہوتے ہیں تو انہیں وزٹ کرنے جانا ہوتا ہے۔ ان کو بھی عید کی خوشیاں مبارک ہوں، اس لیے ہم ان کے ساتھ تھوڑا سا سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں۔ باقی جو جونیئر ٹیم دے رہی ہے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے جو ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، اور ڈاکٹرز کو جو سپرویژن کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے سینئر ڈاکٹرز آن کال ہوتے ہیں۔ عید پہ چھٹیاں ہیں، ڈاکٹرز کو تو کبھی چھٹی نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہے عبدالباسط، آپ تو خود ڈاکٹر ہیں۔ میری تو خود دوسرے دن بھی ڈیوٹی ہے، تیسرے دن بھی۔ تو ہم آن کال ہوتے ہیں، اور ہمارے کولیگز جو ہیں وہ انہوں نے ڈیوٹیز ڈیوائڈ کی ہوتی ہیں عید کے تینوں دن کے لیے، اور ڈاکٹرز تو ہمیشہ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں۔ اچھا میڈم، یہ جو عید ہے اس کے ساتھ قربانی کا جو مقدس فریضہ ہے، اس میں لوگ قربانی کرتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، تو بہت سارے پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں۔ پیشنٹ کی تعداد بڑھ جاتی ہے عام دنوں کی نسبت؟ دیکھیے، پیشنٹ کی تعداد شاید عام دنوں کی نسبت کچھ اسپیسیفک مریضوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ جیسے معدے کے امراض کے مریض زیادہ آتے ہیں، یا بلڈ پریشر کی زیادتی کے مریض زیادہ آتے ہیں، یا دل کے امراض جو ہیں ان کی بڑھ جاتی ہے، یا شوگر ان کنٹرول کے ساتھ پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں، یا یورک ایسڈ کے مسئلے کے ساتھ آتے ہیں۔ کچھ لوگ گوشت کاٹتے ہوئے انجری ہو جاتی ہے اس کے ساتھ آتے ہیں، جو نئے نئے قصاب ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اناڑی کسائیوں سے پرہیز بالکل بچنا چاہیے، اور جو اناڑی کسائی بنتے ہیں میرے خیال میں ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اس سیزن میں تو آپ کو پتہ ہے ہر کوئی کسائی بننے کے لیے تیار ہے، کیونکہ کسائی ملتا بھی بہت مشکل ہے۔ بہت مشکل ہے، آپ ان نے کو تو بک کرنا کر لی آج یا ابھی کرنی ہے؟ جی، ہم نے بکرے پہلے دن قربان کرتے ہیں اور گائے ہم سیکنڈ ڈے قربان۔ اچھا، اور کسائی مل جاتا ہے آپ کو؟ جی، وہ کسائی پرانا ہے ہمارا، تو ہم اس کو پہلے سے ہی انگیج کرتے ہیں۔ میڈم، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے پاس پیشنٹ جو آتے ہیں خاص کر جو سٹمک ایشوز کے ساتھ آتے ہیں، تقریباً ہر دوسرا بندہ اس مرض کے ساتھ عید کے دنوں میں تو خاص کر، اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ اس عید پہ ہی خاص کر کیوں آتے ہیں؟ دیکھیں، یہ عید قربان کو ہم گوشت سے بھی ایسوسیٹ کرتے ہیں، تو جو میٹ کی بہت زیادہ انٹیک ہے وہ پریسپیٹیٹ کر دیتی ہے ہمارے معدے کے امراض کو۔ اسپیسیفکلی جو پیشنٹس آلریڈی معدے کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں وہ بھی، اور کچھ نئے مریض بھی ہمارے پاس آنے لگتے ہیں۔ مرچ مسالے کی زیادتی، جو ہم باربیکیو کر رہے ہوتے ہیں اور نہاری اور کڑھائیاں چل رہی ہوتی ہیں اور دعوتیں چل رہی ہوتی ہیں، تو مرچ مسالے کی زیادتی کی وجہ سے مریضوں کو جلن، تیزابیت کی شکایت ہوتی ہے، جس کے بعد وہ ہاسپٹل میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اوور ایٹنگ، ایک ہمیں لگتا ہے کہ یہ عید شاید ہمیں جتنا گوشت آج کھا لے سارا ہی آج کھا لے، اور سارا کھانا بھی ہم نے ڈسٹریبیوٹ نہیں کرنا۔ سو وہ اوور ایٹنگ کی وجہ سے جو وہ ایک سمٹمز آتے ہیں جس میں گیسٹرائٹس کے ساتھ یا پھر لوز موشنز کے ساتھ پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں، یا کھانا ہضم نہ ہونے کی وجہ سے وامٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ کیا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کیسے وہ گوشت کھائیں اور اس سے بچیں؟ اسلام نے ہمیں اعتدال پسندی سکھائی ہے، تو ہمیں ہر چیز میں ماڈریشن کرنی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ گوشت نہ کھائیے، آپ گوشت ضرور کھائیے، بیکاز یہ اس کی اسپیشلٹی ہے اس عید کی، لیکن اس کو ماڈریٹ اماؤنٹ میں کھائیے، اور اس میں جو بے حد تیز مرچ مسالہ جات کا استعمال ہے یا بہت فرائی کر کے جو چیزیں ہیں ان کو اوائڈ کیجیے۔ اور وہ لوگ جو کسی مرض میں مبتلا ہیں، جیسے ان کو دل کا عارضہ ہے، یا بلڈ پریشر کی تکلیف ہے، یا ان کا یورک ایسڈ ہائی ہے، یا جو گردے کے امراض میں مبتلا ہیں، ان کے لیے ایک کوشن ہے کہ وہ بہت زیادہ گوشت نہیں کھا سکتے، کچھ کو صرف چکھنے کی حد تک گوشت استعمال کرنا چاہیے۔ سو آپ ضرور اعتدال پسندی کے ساتھ اپنے گوشت کا استعمال کیجیے، مرچ مسالوں کی زیادتی سے بچیے اور اوور ایٹنگ سے بچیے۔ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ گوشت اکٹھے نہ کھائیں، اعتدال کے ساتھ کھائیں، تو اگلا سوال جو میرے ذہن میں اس وقت ہے وہ یہ ہے، کیونکہ میں بھی بڑے شوق سے گوشت کھاتا ہوں، پھر لوگ گوشت سٹور کر لیتے ہیں۔ عام تاثر یہ ہے کہ جو گوشت سٹور ہے، جو فریج میں پڑا ہوا گوشت ہے، اس میں کچھ ایسے بیکٹیریا بن جاتے ہیں یا وہ خراب ہو جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟
देखिए, आप फ्रीज़ कर सकते हैं गोश्त को, इसलिए क्योंकि फ्रीज़ करने से जो है वो टेम्परेचर इतना कम होता है कि बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते हैं। और जब आप उसको कुक कर लेते हैं तो जब 100 डिग्री से ज़्यादा ऊपर बॉइलिंग टेम्परेचर से ऊपर जाता है तो जरासीम मर जाते हैं। लेकिन अगर गोश्त आपने बाहर रख दिया है और गर्मी का मौसम है और ह्यूमिड है, आजकल आपको पता है बरसात का मौसम है, और गोश्त ख़राब हो गया है, बदबूदार हो गया है, तो उस वक्त गोश्त को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा, मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि ऑर्गन मीट जो हमारा होता है, जैसे कलेजी है, उसका इस्तेमाल करिए, एहतियात से कीजिए, क्योंकि जो ऑर्गन मीट है इसमें कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होती है, यूरिक एसिड की मिकदार भी ज़्यादा होती है, और ये मरीज़ों के लिए जहाँ बहुत लजीज है पर नुकसानदेह भी हो सकता है। जो लोग पहले से किसी मर्ज में मुब्तला हैं वो इससे परहेज जी करें। बिल्कुल। और पाए बहुत शौक से लोग पकाते हैं, वो बहुत रिच होता है उसका शोरबा, वो हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स को नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसमें आपने देखा है वो चिकनाई की तरह। अच्छा, बहुत सारे लोग इस तरह भी करते हैं कि वो जो चिकनाई होती है, मेरी अपनी माँ जी भी ये करती हैं, नहीं उस चिकनाई को वो दोबारा वो गोश्त पकाने में इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं जी ऑयल इस्तेमाल ना करें, यही गोश्त की ऑयल किसी भी फॉर्म में हो, वो है तो ऑयल ही, और वो ऑयल जिस तरह आपने देखा है कि जम जाता है अगर टेम्परेचर लो, तो वो आपके खून की शरियानों में भी जाके अंदर जम जाता है और खून की नालियों की तंगी का बायस बनता है, जिस वजह से फिर आपको ब्लड प्रेशर का अर्जा भी लाहक हो सकता है, आपकी दिल की नालियां भी तंग हो सकती हैं। सो आप इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, बट एतदाल के साथ। जिस तरह आपने जिक्र किया ब्लड प्रेशर के मरीज़, ऐसी क्या चीज़ है गोश्त में जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ को डिस्टर्ब करती है? देखिए, ब्लड प्रेशर के मरीज़ गोश्त को जब आप पकाते हैं तो उसको नमक से धोते भी हैं कई दफ़ा, उसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए, और फिर उसमें नमक और तेज़ मिर्च मसाले भी डालते हैं। जो सॉल्ट है that has to be restricted in blood pressure patients। यानी नमक ब्लड प्रेशर के लिए नुकसानदेह है? नमक ब्लड प्रेशर के लिए नुकसानदेह है। तो तेज़ नमक जो है वो ब्लड प्रेशर को 10 से 20 मिलीमीटर बढ़ा देता है, ऊपर के ब्लड प्रेशर को भी और नीचे के भी ब्लड प्रेशर को। और सिर्फ नमक का इस्तेमाल कम करने से, यानी कि ऊपर छिड़क के नमक ना खाएं या हांडी में नमक कम इस्तेमाल अगर आप करें, तो आप 10 से 15 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में नीचे ला सकते हैं। सो इतनी छोटी सी एक लाइफ में एक छोटा सा टोटका है। मिर्च मसाला है, इसका भी कोई ताल्लुक है जी, ब्लड मिर्च प्रेशर मसाला, देखिए मिर्च मसाला जो है वो आपकी तेज़ाबियत और मैदे की जलन का ज़्यादा बायस बनता है। लेकिन जाहिर है कि अगर प्रेशर सिम्टम्स हों तो मरीज़ को तेज़ाबियत हो, बेचैनी की कैफियत हो, तो एंग्जाइटी भी होती है और उससे ब्लड प्रेशर भी होता है। अच्छा, शुगर का मरीज़ इससे कैसे मुतासर होता है? देखिए, शुगर का मरीज़ गोश्त डायरेक्टली तो बहुत ज़्यादा हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को मुतासर नहीं करता, लेकिन शुगर के मरीज़ ओवरऑल हेल्थ के लिए उनकी बेहतर है कि वो भी किसी भी चीज़ की ज़्यादती ना करें, क्योंकि उससे ओवरवेट होते हैं। और जो पेशेंट्स ओवरवेट होते हैं, जिनके वज़न ज़्यादा होते हैं, उनकी शुगर अनकंट्रोल्ड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो खाने से होती है, और जब आप ज़्यादा खाते हैं, जी जब ज़्यादा खाते हैं तो आप में मोटापा और चर्बी की मिकदार ज़्यादा होती है, उसकी वजह से आपकी शुगर अनकंट्रोल भी हो सकती है। शुगर आपको अपनी उम्र से पहले भी हो सकती है। शुगर में मैडम एक जो खास कर ईद के मौके पर हम देखते हैं, कुछ लोग हैं वो दवाइयों से शुगर कंट्रोल करते हैं और कुछ इंसुलिन से। इंसुलिन लेने वाले मरीज़ ये समझते हैं कि उनको किसी एहतियात की ज़रूरत नहीं है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मुख्तलिफ़ तरीक़े इलाज होते हैं जो मुख्तलिफ़ स्टेजेस के हिसाब से आप अडॉप्ट करते हैं। अब कोई मर्ज़ है जो कि इनिशियल स्टेजेस पे है और वो दवाइयों से शुगर कंट्रोल है, तो वो दवाइयों पे ही सारी उम्र भी चल सकता है। जैसे जैसे मर्ज़ बढ़ता है, आपकी उम्र बढ़ती है, मर्ज़ भी बढ़ता है। और एक ऐसी स्टेज आती है जब जिस्म में जो अपनी इंसुलिन है वो काम नहीं कर रही, उस वक्त बाहर से ही इंसुलिन दे के इंसुलिन देने की ज़रूरत पड़ती है। सो ये नहीं है कि इंसुलिन आपको शुरू हो गई तो आपको खुली छुट्टी है, आप जो मर्ज़ी खाएं, आप मिठाइयाँ भी खाएं, चॉकलेट्स भी खाएं, आप बहुत थोड़ी मिकदार में मीठा खा सकते हैं, और वो मीठा खाइए जो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। जैसे फलों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत मीठे फल जो हैं जैसे केला है, अंगूर और आम, उससे परहेज़ कर लीजिए। जो थोड़े मीठे फल होते हैं जिनमें सेब है, अमरूद है, किन्नू, माल्टा, मौसमी, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा ये कि शुगर के मरीज़ों में शुगर कभी अकेली नहीं आती, वो अपने साथ अपने बहन भाई लेके आ जाती है। सो वो ब्लड प्रेशर को भी ले आती है, कोलेस्ट्रॉल को भी ले आती है, और फिर ये सब रिस्क फैक्टर्स मिल के आपके जिस्म को मुतासर करते हैं, आपकी खून की नालियों को मुतासर करते हैं, आपके दिल की तकलीफ, आपके दिमाग की शरियानों, जी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इन पेशेंट्स में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। सिर्फ ये ना सोचें कि मुझे और कोई बीमारी नहीं है, मुझे तो सिर्फ शुगर है, तो मैं फिर ये एहतियात नहीं करूँगा। अच्छा, एक बड़ा हमने देखा है मजबूत रिश्ता होता है, हमारे पास ऑर्थोपेडिक्स में भी आते हैं, आपके पास भी ये पेशेंट्स आते होंगे, जोड़ों के मर्ज़ में जो मरीज़ मुब्तला होते हैं वो गोश्त के बारे में बड़े कॉन्शियस होते हैं
आम ज़ुबान में हम इस मर्ज़ को गैंठिया का मर्ज़ जिसको कहते हैं, यूरिक एसिड लोगों का बढ़ा हुआ होता है, उन्हें किस एहतियात की ज़रूरत है? और क्या ये मटन खाने से या गाय का गोश्त खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है? जी, यूरिक एसिड जो है वो आपके जोड़ों में, और स्पेसिफिकली कुछ जोड़ हैं जो उसको पसंद हैं, उसके अंदर जमा हो जाता है। जब यूरिक एसिड आपके जोड़ों में जमा होता है तो सोजन भी करता है, रेडनेस भी करता है, दर्द भी करता है, जिसे हम गाउट कहते हैं। ये प्योरीन डाइट या हाई प्रोटीन डाइट से प्रेसिपिटेट होता है। और जो आपका रेड मीट है, जिसमें आपका मटन और बीफ दोनों शामिल हैं, ये बहुत रिच हैं इन प्रोटीन्स में, इसलिए इन मरीज़ों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है रेड मीट से एंड ऑर्गन मीट से, बिकॉज़ ये हाई प्रोटीन डाइट्स होती हैं। सो इनको इसकी एहतियात करनी है। और सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, स्पेशली पालक, साग, मेथी, ये भी जो है हाई होती है यूरिक एसिड के अंदर, और पेशेंट्स जो हैं इसकी ज़्यादा। अच्छा, यानी जो आपने कहा हाई प्रोटीन डाइट, उसमें avoid एक तो बकरे का गोश्त है, मटन है, गाय का गोश्त है, और क्या क्या शामिल है? ऑर्गन मीट है उसके अंदर, टमाटर जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन्स जो हैं वो दालों में भी होता है, दालें भी कम इस्तेमाल करनी चाहिए इन पेशेंट्स को। ये मेनली रिच सोर्सेज हैं आपके प्रोटीन्स के। एग प्रोटीन आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एनिमल ओरिजिन की प्रोटीन्स को आपको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। यानी जो यूरिक एसिड के पेशेंट्स हैं वो, उनके लिए गोश्त आप एडवाइस नहीं कर रही? बिल्कुल चखने की हद तक इस्तेमाल करें। अगर आपको एक्यूट अटैक होते रहते हैं यूरिक एसिड के, बेहतर तो ये है कि आप अपने यूरिक एसिड के लेवल्स चेक कराएं, और उसके लिए दवाइयाँ, अद्वियात अवेलेबल हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि अब मैं दवाई खा रहा हूँ तो बस फिर मैं गोश्त जितना मर्जी खा लूँ, वो आपने एहतियात से ही खाना है। बहुत शुक्रिया मैडम, जिस तरह आपने डिटेल से हमें बताया कि ब्लड प्रेशर के, शुगर के और यूरिक एसिड के मरीज़, तो आखिर में मैं चाहूँगा, हमारे नाज़रीन भी चाहेंगे कि आप कुछ जनरल टिप्स दें कि खाने में ईद के 3 दिन लोग क्या क्या खाएं जिससे उनकी सेहत भी बेहतर रह सकती है और वो ईद को भी इंजॉय कर सकते हैं। कैसे, मतलब क्या, आपने तो मना कर दिया है तकरीबन, पाए से भी मना कर दिया है, मुझे वो पसंद है, बारबेक्यू से भी मना कर दिया है, तो फिर आखिर खाएं क्या लोग? तो बिल्कुल नहीं किया, मैंने कहा हर चीज़ एतदाल में। देखें, जो खाना है वो मॉडरेशन में खाना है, और खाने को हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। हमारा क्या है, सिंगल ट्रैक पे चले जाते हैं, मीठा खा रहे हैं। सवैयों वाली ईद है, दही का कितना इसमें कंट्रीब्यूशन है? हाँ, ये भी मैं बताती हूँ। सवैयों वाली ईद होती है, सवैयाँ ही खाए जाते हैं, मीठा शुगर बढ़ जाती है। गोश्त वाली ईद होती है, गोश्त के ट्रैक पे चलते हैं, सुबह दोपहर शाम गोश्त खाया जा रहा है, तो फिर आप ब्लड प्रेशर और यूरिक एसिड के मसाइल के साथ आते हैं। सो आप अपनी डाइट को बैलेंस्ड रखिए। और मैंने बताया कि तेज़ मिर्च मसाला जात, क्योंकि थोड़ा त्यौहार का भी मौसम होता है और मज़ेदार बनाने के लिए खाने मसाले भी इस्तेमाल होते हैं, तो दही आपने बहुत अच्छी एडिशन की कि वो इनको कॉम्बैट कर लेता है। एक तो वो माइल्ड कर देता है, दूसरा हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन हैं कि हाजमे में बेहतरी करते हैं। सो दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। ठंडी तासीर होती है, बूढ़े बड़े कहते हैं, तो उसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अपनी लिक्विड इंटेक को ज़रूर बढ़ाइए। जब आप बहुत नमकीन गोश्त खाते हैं तो आपको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। सो पानी, एक तो वैसे भी मौसम बहुत ह्यूमिड है, गर्मियों की ईद आ रही है, तो आप पानी और नमकियात की कमी का शिकार ना हो जाएं, तो पानी की इंटेक भी ज़रूर लीजिए। और इसके अलावा आप सब्जियों को और फलों को इग्नोर ना कर दें, सिर्फ गोश्त के चक्कर में इनको भी ड्यू इम्पोर्टेंस दीजिए। दूध, सब्जियां, फल, ये हमारी हेल्दी खुराक का ज़रिया है और इनको ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए। इसके अलावा चिकन और फिश, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेड मीट के अलावा भी मीट है, ईद के मौके पर। बिल्कुल बिल्कुल। सो रेड मीट के अलावा भी दुनिया में मीट है, उसको इस्तेमाल कीजिए, इसके भी बहुत से फ़ायदे हैं। सो अपनी बैलेंस डाइट, और दूसरा थोड़ी थोड़ी करके खुराक लीजिए। एकदम से बहुत सारा खाते हैं फिर सो जाते हैं, उसके बाद जो वो एक बुलबुला उठता है गैस का, और वो यहाँ से मरीज कहते हैं कि चढ़ के सर को चढ़ गया, जाके फट रहा है। ठीक है। सो इसके लिए ये है कि लेटे ना। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि एक तो थोड़ा भूख रख के खाइए, खाने के साथ बहुत ज़्यादा पानी ना पिएं, क्योंकि एकदम फुलनेस की फीलिंग आती है। खाना खाने के फ़ौरन बाद लेटे ना, आगे झुक के कोई काम ना करें, जैसे चीज़ ना उठाएं, नमाज में पढ़ें, और फ़ौरन बाद या पहले वॉक ना करें, ठीक है। सो एक्सरसाइज के फौरन बाद या फौरन पहले वॉक ना करें, क्योंकि आपका जो खून का निज़ाम होता है वो खाने को हजम करने में बिजी होता है। जब आप और एक्सरसाइज करने लगते हैं और स्ट्रेस होता है। सो खाना खाने से थोड़ी देर पहले या थोड़ी देर बाद जब खाना हजम हो जाए, उस वक्त जो है वो आपकी वॉक रिकमेंडेड है। सो जो आपने खाया है उसको बर्न आउट भी करना है, और उस बर्न आउट करने के लिए आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं लाइट, तो बहुत अच्छा है, स्विमिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, लेकिन एक
ماڈریٹ ایکسرسائز اینڈ ماڈریٹ ڈائٹ، یہی ایک بیلنس جو ہے وہ آپ مینٹین کریں گے تو آپ صحت مند زندگی بہت شکریہ ڈاکٹر سومیہ اقتدار، ایسوسیٹ پروفیسر آف میڈیسن، میو ہسپتال لاہور، ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ ناظرین، آپ نے ان کی باتیں سنی، بہت مفید مشورے انہوں نے دیے۔ عید کے موقع پر انہوں نے آپ کو بتایا کہ ماڈریٹ ڈائٹ کے ساتھ، ماڈریٹ ایکسرسائز کے ساتھ آپ اپنی اس عید سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس عید کے ساتھ ہمارے ساتھ جشن آزادی کا موقع بھی ہے۔ آخر میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ جشن آزادی کے موقع پر، عید کے موقع پر عہد کریں کہ ہم سب اپنے اس عرض پاکستان کی ترقی، کامیابی اور کامرانی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط کو اور ڈاکٹر سومیہ اقتدار کو عید الاضحیٰ کی ٹرانسمیشن سے اجازت دیجیے۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ، عید مبارک۔